Okay, now in this video, I'm just continue the next video. If you want to continue, you just please watch my previous video regarding this thing. So, uh, so now I'm talking about this spore formation. I'm just continuing from where I just left it from in the next video. I'm just continuing it. So, this spore formation. Now, this spore formation. In the previous video, I told you that sporangia is the special structures, knob-like structures in which the spores are present. Now, these sporangia are found in the structure which is known to be a sporangiophore, and these sporangiophores are the special mycelium or the special hypha. Now, now when these spores get dehiscence, or this spore, not spore actually, when this sporangium get mature and when it get dehiscence, जब ये टूटते हैं, जब ये mature होने के बाद जब ये टूटते हैं, when they broken down, then the spores were released into the atmosphere. The spores were released into the atmosphere, and these spores were these spores were carried by the air current or carried by the air to the various places. And where they get landed, where they get lodged, they start producing the new fungus or the new individual there. So, so in exam, in the CBSE exam, the question is asked. In the CBSE exam, the question is asked, what are the advantages one plant should get by reproducing the spores? इन स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करने पर किसी एक प्लांट को जो है वो क्या फायदा होता है? तो क्या फायदा होता है? पहला फायदा ये होता है कि स्पोर्स जो है जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस ग्रोथ के लिए, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहती हैं ग्रोथ के लिए, उस समय ये प्लांट स्पीशीज को जो है ये बचा के रखते हैं. They protect the plant from the unfavorable condition, and when the favorable condition arises, जबकि मॉइस्चर मिल जाएगा, प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाएगा अपनी ग्रोथ करने के लिए, जब प्रॉपर कंडीशंस आ जाएंगे, जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे, उस समय ये जो प्लांट है, उस समय जो स्पोर्स हैं, इनसे नया ऑर्गेनिज्म जो है ये ग्रो कर रहे हैं, मतलब नया राइजोपस जो है वो बन जाएगा. अगर हम राइजोपस का एग्जांपल लें तो पहली चीज. The second thing is that when these spores helps the plant to invade new areas, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, they can be easily carried out by the air current. ये हवा से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं. ये हवा से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. हवा से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. तो ये प्लांट, ये जो किसी भी ऑर्गन और कोई भी एक जो ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो कोई भी एक प्लांट जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो नए नए एरियाज में जाके अपनी कॉलोनीज को डेवलप कर सकता है, या फिर नए नए एरियाज में जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है. तो ये दो मेन एडवांटेज हैं जो आपको अपनी बुक में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है और अपने को इसको याद भी करना है. कैसे, कौन से दो एडवांटेज हैं जिसकी वजह से ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर फॉर्मेशन जो प्लांट कर रहे हैं, इन प्लांट्स को क्या फायदा होने वाला है? तो दो फायदे होने वाले हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए. ठीक है, याद रखिए. नाउ द next thing which is there in our topic is the sexual reproduction. Now अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, they are all mode of asexual reproduction. ये सारे के सारे मोड जो है वो asexual reproduction के हैं. चाहे आप बाइनरी फिशन के बारे में बात करें, मल्टीपल फिशन के बारे में बात करें, या फिर आप जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करें, आप किसी भी चीज के बारे में बात करें,
these are the examples of the not example actually, these are these are the examples of asexual reproduction. ये सारे के सारे asexual reproduction के modes हैं. Example कह लो या modes कह लो, same thing. ठीक है, तो ये सारे के सारे modes हैं. ये spore formation, that is also a type of asexual reproduction process. Now the next thing we have to study is sexual reproduction process. तो sexual reproduction की process जब हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ऐसा जरूरी हो गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी है, जबकि नेचर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी, तो क्यों ऐसा जरूरी हो चुका है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जरूरी है? तो ये सिंपल सा इसका आंसर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेस वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म. वेरिएशंस की वजह जरूरत है. वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट. वेरिएशंस चाहिए. तो वेरिएशंस क्यों चाहिए? क्योंकि इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस को कोप अप करने के लिए, उस चेंजेस से बचने के लिए, उन चेंजेस से हम लड़ने के लिए वेरिएशंस का होना बहुत जरूरी है. अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो हो सकता है कि कोई स्पीशीज जो है, अगर हम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करें, हम अपनी बात छोड़ें, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं. जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस हमें दिखाई देते हैं. ये वेरिएशंस हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ कम समय में आ जाए, हो सकता है कि कुछ में लाखों समय में आए, बट दिस वेरिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो ये क्यों हो रहा है? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि वेरिएशन हमें जो है, वेरिएशन हमें नहीं, एक्चुअली इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में वेरिएशन जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट से हमें बचाते हैं. स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए वेरिएशन जो है वो बहुत जरूरी है. अगर वेरिएशंस नहीं हो तो हो सकता है कि स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाए, या फिर उनकी संख्या नंबर जो है वो बहुत कम है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स वेरिएशन. Sexual reproduction provides variations and new combinations also. Sexual reproduction provides variations and new combinations in the species, and that is the reason why the sexual reproduction is needed. Now, when we talk about the sexual reproduction, in the sexual reproduction, the two parents are involved, the male and the female, but in the asexual reproduction, only one parent is involved. So in the sexual reproduction, the two gametes were released, the male gamete and the female gamete. These two were released and they fertilize to form the zygote, and from the zygote the new individual and they get produced. Now this already we know from the 8th class. Now in detail, the next topic which we are going to see in the detail is the sexual reproduction in the flowering plant, and that topic you can find that topic in my next video. Okay, please see that.